in every corner of this country. The idea is to create leaders and not followers. Access must be created where it is possible. At Law Seeker, at Project Maverick, we aim at providing free training for law aspirant for all law entrance examination, bringing your law school dream closer to you. In this endeavor of ours, we have been running these live interactive sessions all weekdays on different subjects to help you prepare for law entrance examination. Today, we have with us Neelam ma'am, who holds years of experience and she is an analytical reasoning expert, widely renowned in this field around northern India. Today, she has agreed to take topic of coding decoding. I understand this topic is quite relevant to law entrance examination. The previous topic taken by her was on blood relations, and we got an amazing feedback from student communities. This topic, coding decoding, as far as I remember watching Indian movies and Hollywood movies, comes all of a sudden to our mind when we say there's some code to this, somebody telling you a particular thing and they wants you to decode that particular message. All spies movies are based on this. So uh, the last uh, the last session was filled with example, filled with humor. Today we look forward to one more amazing session, my ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Harsh. Thank you so much. So, voice and everything is good, I guess. Yes, ma'am, it's perfect. Okay, so see, in CLAT, coding decoding is not that big of a topic. So it's very easy to understand. I think we first need to understand the basics of coding decoding. Why, in the first place, people would have started, code something or then to decode it. So the question, the topic goes like coding and decoding. Actually, it has to be decoding and then coding. Why? Because first you are always given an example. You need to decode on that basis. You have to see that what pattern is going on, and according to that analytical skills, like whatsoever you decode, it has to be paid emphasis that you're doing it in the right pattern. Sometimes just not one example, but two examples will be given. There are variety of coding decoding from your competitive exam level to your daily life. For example, if we go about in our daily life, so एक बहुत बेस्ट या हम बेसिक सा एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारी लाइफ में. वी हैव दिस स्मार्टफोन्स these days. स्मार्टफोन में बहुत तरह के आप लॉकिंग पैटर्न देखते हो. देयर इज फेस रिकॉग्निशन, देयर इज पैटर्न बिल्डिंग, देन देयर इज दिस पिन code, that is the, if you put numbers in a way. So sometimes people put numbers in a very a very coded pattern, like you might put the prime numbers, that too with a gap of 1 or 3. Then you might put odd numbers. There could be an arrangement of even and odd. So coding is, I look at coding in a way that it is just the creativity of your brain, that how far you want to go. Suppose if you want to send a message that needs to be read by the particular person you are sending to, not by anyone else, तो आप ट्राई करेंगे कि आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे कोड करें. जैसे कि आपका फेसबुक प्रोफाइल होता है, उसका जो पासवर्ड है वो भी कोडेड है. सो ये कोडिंग इट्स एक तो हम सी एस आई टी में इसको एज अ लैंग्वेज फॉर्म देखते हैं, बट डेली लाइफ में आप इसको बहुत ज़्यादा जगह देखो. द बेसिक एग्जाम्पल इज, अगर आप पैटर्न लॉग लगाते हैं, देयर आर लाइक दीज 3 डॉट्स. ये जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स को कनेक्ट करने का आपने खुद भी बहुत पैटर्न ट्राई किए होंगे अपने खुद के फोन में क्या. लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि दैट ये जो आपने पैटर्न खतरनाक सा लगा दिया, zigzag दिस एंड दैट करके, बहुत ही ऐसा बना दिया आपने, बिल्कुल यहाँ से गए यहाँ पहुंच गए, यहाँ तो नहीं पहुंच सकते, कुछ यहाँ चले गए, ऐसा कुछ बना दिया. और ऐसा बनाने के बाद आपको लगे कि बस यही है सबसे खतरनाक. ऐसा नहीं है. You can draw a number of patterns. There cannot be any limit to it. The similar way you can have number of Facebook password as well. So coding has no limit. It is just, it can be a little simpler. It can be little moderate level, or it can go on the expert or advanced level. The movie I can connect you guys with is the Madras Cafe. If you guys would have seen the movie Madras Cafe, you would come to understand the significance of coding decoding. So these terrorist group, what they do is they do not speak in a plain manner. They speak in the coded forms. And the IB or intelligence bureau and everything, they do all these training.
तो वहां पे उस मूवी में भी आपको कोडिंग का एक बहुत सटल सा एक वेरी नाइस एग्जांपल यू माइट सी. So if you have not watched the movie yet, you must watch it. It's very nice movie. Well, getting to the topic. So the topic talks about coding decoding. Now, the types of coding decoding are, the very first one is normal coding, and for CLAT level, I would say this normal coding is more of importance. And then you can go up to number coding. This is again important. Conditional coding is also there. Conditional coding is not, it wasn't there earlier, but now you might see question based on that also. Message and paragraph coding is when you have like four lines and then there are four quotes on the other side. That is the message and paragraph coding. So this the pattern you find here. Normal coding has order based, substitution, reverse, mixed. So we'll first go through all these and then we'll move on to the further one, right? So getting forward with this, the first one in the kind is order based. So as the name suggests, wait. So as you see, the name says order based coding. So can we first see some answers here? Guys, can you try and then we discuss it? Ashish and Ishani have given the answers as ELCCIR. Great. Arushi says the same. Yeah, Arushi, then now it's fine. Pranay saying the Pranay, are you sure this will be the answer? It's a very basic one. This is the base. I would say कि बहुत ही तुच्छ कैटेगरी का ये क्वेश्चन बोला जाएगा. तो यहाँ गलती मत करो प्रणय. Check it out again. You can do better. Much better. चलिए. तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं. It's a very simple one. See, first of all, let's understand why are we giving up any coding per se, any name, right? When we categorize things, there is some sort of connection you find between the things, and that is why. For example, let's leave this question as of now. Just forget this one. Let's just, if I put this, let's put there's a word monkey, and I code this monkey as OMKNYE. What you find? Do you find any new letter? You find anything extra here? No. You don't find Z, you don't find X, or you don't find any other letter like L or something. जितने भी आपको यहाँ लेटर दिखाई दे रहे हो सब क्या वो कहीं ना कहीं यहीं से कॉपी हो रहे हैं. It is just what's happening. They are just changing the places, right? तो order based coding का जो एक basic सी बात है वो यही है that only the order of the letters will change. Order से हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उनकी positions की बात हो रही है, positions की बात हो रही है. ईशानी और प्रणय तुम दोनों के बीच में कोई वॉर चल रहा है. ईशानी बोल रही ELCCIR, प्रणय बोल रहे CLECIR. Okay, we can talk about that later. So monkey can go like OMKNYE on the same basis. If you are asked कि elephant का कोड क्या होगा या gorilla का कोड क्या होगा तो आप accordingly आंसर कर सकते. What's happening is अब पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं. देखो यहाँ पे पेयरिंग कर दी, ये पेयर, इस पेयर को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, इस पेयर को क्या एक्सचेंज कर दिया, इस पेयर को भी क्या एक्सचेंज कर दिया, right? Similarly, when you talk about radius, now let's pay attention to this. Radius has been coded as what? देखो यहीं पर कोडिंग डिकोडिंग का जो है जो आपको एग्जांपल दिया जाता है उसका वैल्यू होता है
कि आप अपने हिसाब से इट्स अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में जाएं तो नंबर ऑफ पैटर्न्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द सेम वर्ड। एक ही वर्ड को आप बहुत सारे लाइक इनफाइनाइट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। बट वो हमें जब हम कंपटीशन में बैठे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें दिया गया हम उसके बेसिस पे उसको उतार पाते हैं नहीं। नाउ पे अटेंशन टू दिस, रेडियस हैज बीन रिटन एज SUI। तो क्या किया, लास्ट से शुरू किया SUI और उसको रिवर्स पैटर्न में लिखा है। तो सिमिलरली जब आप सर्कल की बात करोगे तो आप भी लास्ट से शुरू करोगे, लास्ट से शुरू करोगे और रिवर्स पैटर्न में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये ELC बनेगा। तो यहाँ पे आया SUI, सिमिलरली यहाँ से क्या होगा ELC, यू सी दैट। एंड देन रेस्ट जो बना है रेडियस, उसको क्या किया उन्होंने, फिर यहाँ से पिक किया, स्टार्टिंग से पिक किया एंड आगे फॉरवर्ड गए तो आ गया क्या आपका RAD। तो सिमिलरली आप भी क्या करेंगे, बाकी के जो 3 लेटर्स हैं आप स्टार्टिंग से पिक करेंगे एंड यू गो इन अ same fashion, that is CIR, right? So the correct code for this one will be ELC CIR, which Ashish says is right. प्रणय थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हो इसमें, ईशानी और बाकी सब लोगों का आई गेस सही है, सभी लोगों ने ये आंसर किया था जहां तक मुझे है ध्यान। वेल डन गाइस, या करेक्ट। सो इट विल बी ELC CIR। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज कि क्या अगर मुझे रेडियस को कोड करना है तो दिस इज द ओनली वे, या मुझे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड मंकी कोड करना है तो इज दिस द ओनली वे? नो, नेवर। Actually, let's see if I can show you bit of the things here. Let's suppose we have a word as money, or let's keep it a 6-digit word, monkey बना लेते हैं, ठीक है। एक तो पैटर्न आपने देखा क्या कि हमने इसको क्या किया, पेयरिंग में डिवाइड कर दिया और इसको हमने एक्सचेंज करके लिख दिया पेयर में। So MO becomes OM, NK becomes K, and EY becomes Y. You see one pattern? You agree with that? Now this monkey can again be with the same letters, the similar letters. We can make another code, like you can reverse the whole thing. Reverse करोगे तो YEKNOM बनेगा, या हम ऐसा कर सकते that we can start from the first, then last, then second last, then third last. So we can start with M. This is the first one. Last का क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। सेकेंड लेटर स्टार्टिंग से क्या आएगा, O आएगा। सेकेंड लास्ट क्या आएगा, E आएगा। थर्ड क्या आएगा, स्टार्टिंग से N आएगा और थर्ड लास्ट क्या आएगा, K आएगा। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने पूरे के पूरे वर्ड को जस्ट हाफ में स्प्लिट किया। जस्ट हाफ में स्प्लिट करने वाला केस आपके ऑड नंबर ऑफ लेटर वाले वर्ड पे नहीं बनेगा। पर से यू हैव अ वर्ड लाइक स्प्लिट। स्प्लिट हैज हाउ मेनी लेटर्स, स्प्लिट हैज जस्ट 5 लेटर्स। तो स्प्लिट में ये पैटर्न नहीं लगेगा कि आपने हाफ में से स्प्लिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 एक साइड हो जाएंगे, 3 एक साइड हो जाएंगे। तो यू हैव टू सी कि कौन सा पैटर्न कहाँ लग सकता है। तो मंकी में अगर आप जस्ट इसको हाफ कर दोगे तो MON एक बनेगा, KY एक बनेगा। उसको भी लिखने के आपके पास तरीके हैं कि आपने MON को क्या कर दिया, NOM कर दिया, स्टार्टिंग वाले को रिवर्स कर दिया, KY को क्या कर दिया, YEK कर दिया। तो कैन यू सी कि जितने हम इसी एक 6 लेटर वर्ड है ये मंकी, इसी को आप कितने सारी वेरिएशन में देख पा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो जब हम बात करते हैं ऑर्डर बेस्ड कोडिंग की, इट इज जस्ट सिंपल एज दैट कि आप उसका ऑर्डर चेंज करें ना। व्हाट इज द वे टू रिकॉग्नाइज दिस टाइप ऑफ कोडिंग? सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप सिंपल देखोगे, आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना, जैसे ही आपको दिखाई दे कि अच्छा आर यहाँ पे, आर यहाँ पर भी, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, whenever you find the similar letter on the which side we can call it right hand side, तो जब भी आपको अपने एग्जाम्पल आपको हमेशा दिया जाता है कोडिंग में, देन यू आर ऑलवेज आस्क्ड द क्वेश्चन। तो आप जब भी एग्जाम्पल के राइट हैंड साइड में वही सेम लेटर्स पाएं, वही सेम लेटर्स आपको दिखाई दे जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी हैं, देन इट इज डेफिनेटली ऑर्डर बेस्ड कोडिंग। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि कौन सा लेटर किधर गया, किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेटर्स किधर से किधर मूव हो रहे, हाउ द ऑर्डर इज बीइंग चेंज, दैट इज इट। सो डू वी अंडरस्टैंड दिस गाइस? आर वी क्लियर ऑन दैट? कोई आपका डाउट है रिगार्डिंग द सेम क्वेश्चन और समथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन, उसमें भी हम बात कर सकते हैं। वैसे बहुत इजी टाइप है, बेसिक है, इसके आगे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सो वी शैल गो फर्दर आई गेस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने यूसी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो जरा, एक काम करो, लेट्स डू वन थिंग, वी कैन जस्ट लीव दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ and I give you another question and you tell me, you try to catch the thing here. Let's suppose we have a question as that heart is coded as QPMZS. This is Z guys, okay? Z zebra वाला Z, हाँ वही। तो heart का कोड है QPMZS. So how can you write the code for earth?
पहले एक ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, देन विल गो ऑन टू दिस। फटाफट से बताओ, आप सब बता सकते हो, बहुत इजी है। आयुष्मान का आंसर आया, आरुषि का भी आंसर आया है, अर्चना ने शायद मेरे ख्याल से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर किया, दैट्स ग्रेट अर्चना। एंड ईशानी सेज PMZS, वेरी गुड, वेल डन गाइस। तो सभी ने आंसर दिया है और सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, बस किसी ने एस की जगह एक्स कर दिया है, किसी ने एस की जगह ए कर दिया है। इट कुड बी अ टाइपिंग एरर, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अब देखो, अगेन इफ यू कैन अगेन रिलेट विद द वर्ड व्हाट वी फाइंड हियर, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम क्या समझते हैं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट होता है ना। इफ सपोज बाय एनी चांस आई कुड नॉट बी एबल टू टेक ये जो सेशन, कोई बात नहीं आशीष, हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने इनफैक्ट आशीष जो आंसर दिया था शायद सही दिया था, अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो यू कैन प्लीज आस्क अगेन, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब कि अगर उस जगह पे वो चीज ना हो पाए विच इज सपोज टू हैपन, तो आप उसकी जगह पे क्या करते हैं? कुछ रिप्लेसमेंट देते हैं। सिमिलरली व्हेन यू सी हार्ट, हार्ट इज कोडेड एज व्हाट? QPMZS। तो आपने देखा हार्ट के ही लेटर्स इधर उधर शफल करके, हार्ट को ही यूज करके एक नया वर्ड बनाया, क्या? अर्थ। नाउ इफ आई पे अटेंशन ऑन अर्थ, तो ICEARTH, तो EARTH को ही यूज करके एक नया वर्ड बनाया, अर्थ। नाउ व्हाट विल बी द कोड? तो इस बार कोड आप कैसे करोगे? डायरेक्ट कॉपी करोगे, कॉपी पेस्ट होगा सीधे। तो H का कोड क्या है? Q, तो H का कोड क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। और EART का कोड क्या? PMZS। तो जो आप सबने ही आंसर किया PMZSQ शुड बी द कोड। आशीष, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि हार्ट का कोड है QPMZS, सो व्हाट विल बी द कोड फॉर ईयर? अगर हार्ट का कोड ये है तो ईयर का कोड क्या? अब अगेन द लेटर्स कैन बी इक्वल इन द क्वेश्चन, in comparison to the example, they can be equal, they can be less, they can be more कैसे होंगे? if you try to use H twice और R thrice, तो वो ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली, आरुषि बिल्कुल ठीक बोल रहा, PMZ हो जाएगा। तो अगेन द फंडामेंटल क्वालिटी रिमेन सेम, दैट इज कि जो हार्ट में लेटर्स है, जिसका आपको एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पलीफाई किया गया जिससे, वही उसी के ही लेटर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कुछ नया आपको दिखाई नहीं देगा। तो दैट इज द कैच हियर, राइट? नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर क्वेश्चन, जिसका आपने आंसर सबने सही दिया। अब देखो जरा, अगर आप ठीक से रिकॉग्नाइज करोगे तो टीचर, TEACHER, टीचर में व्हाट ऑल वी फाइंड टी। टी आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ई कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ए की मैं बात करूँ तो ए आपको यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है। अब इन क्वेश्चंस में ना, अभी हमने जो क्वेश्चन लिया हार्ट और ईयर और अर्थ वाला, उसमें क्या था? एक ही एग्जाम्पल था और एक ही आपसे क्वेश्चन आगे पूछ रखा था एग्जाम्पल के बाद। जब आपके पास दो एग्जाम्पल हो ना, देन यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कि ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग ही है या कुछ और है। तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ईट में ए आ रहा है, can you see an A in eat? And you also see A in chair. तो eat में और chair में ये जो A आ रहा है, अगर इसका कोड सेम नहीं है, if in case the code is not same, then definitely it is not substitution coding। तब आपको उसमें कुछ और अपना क्रिएटिविटी इसमें डालनी पड़ेगी। फिलहाल A का कोड क्या यूज हुआ है? 1, और यहाँ पर भी A का कोड क्या यूज हुआ है? 1। तो नाउ यू कैन बी लाइक सेटिस्फाइड कि हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग ही है। अच्छा, तो टीचर का कोड टी कहाँ से कॉपी करोगे? टी आ जाएगा 8 से, विच इज 8। देन वी टॉक अबाउट ई, ई कहाँ से आएगा? 3। देन ए इज व्हाट? 1। देन वी टॉक अबाउट CHER, तो CH is 2 4, E is again 3 and R is 6। so the code has to be 8312436, right? so 8312436, that is the code। so do we agree on this guys? क्लियर है? में फंडामेंटल क्वालिटी वही है कि आपके पास सेम लेटर्स होंगे, जो भी आपका एग्जाम्पल होगा उसी में से आएंगे, चाहे तो वो 2 एग्जाम्पल हो चाहे वो 1 एग्जाम्पल हो। तो दीज द फर्स्ट वन जो हमने अभी पढ़ा ऑर्डर बेस्ड, और जो हमने दूसरा पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, दे आर द बेसिक, दे आर द सेम। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं, मिक्स्ड कोडिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा हमने जो अभी पढ़ा है ना,
उससे थोड़ा एक लेवल हम आगे जाएंगे, आपको भी थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है थोड़ा बहुत, तो एक बार जरा ट्राई करो। वी हैव 3 क्वेश्चंस हियर एज यू सी ऑन द स्क्रीन। वी हैव 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज मेंटल है, मेंटल को हमने लिखा FNUOMB, कोडिंग का कोड क्या होगा? बेलफ है ZDLFH, उसका फॉल्स का कोड क्या होगा? सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। केयरफुल का कोड है समथिंग समथिंग, प्रोसेस का क्या होगा? ठीक है, तो लेट्स टेक 3 मिनट्स गाइस। पहले एक बार आप ट्राई करो, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आप ये तीनों क्वेश्चन भी कर सकते हो जिस तरह से आपने बाकी 2 क्वेश्चंस किए। तो लेट्स टेक 3 मिनट्स टाइम, यू फर्स्ट ट्राई एंड देन वी डिस्कस इट। ओके, ओके ईशानी, ईशानी ने शायद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया, दैट्स ग्रेट, और बहुत जल्दी किया ईशानी ने आंसर, दैट्स इम्प्रेसिव। आरुषि, दैट इज द थिंग ना, अभी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। हाँ, इसमें ना तो ऑर्डर है ना सब्स्टिट्यूशन, मिक्स है। मिक्स मतलब कि एक जनरल आइडिया कोडिंग का क्या होता है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मेरे ख्याल से काफी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है एंड वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। तो लेट्स, ईशानी ने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दिया है। आशीष इज ऑल्सो गिविंग द आंसर। आशीष, ये किस क्वेश्चन का आंसर है? थर्ड का, सेकंड का? ओके okay. बिल्कुल प्रणय, डिस्कस करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखो क्या है अपने पास, 3 क्वेश्चन है। इन जनरल आप क्या करते हो? देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, और मेरे ख्याल से किसी एक ने आंसर दिया था, वेरी गुड आयुष्मान। वी आर नॉट श्योर कि आंसर सही है नहीं है, बट सही भी हो सकता है, वी विल सी दैट। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। मेंटल, मेंटल में क्या लिखा है? FNUOMB, ये लिखा है ना। अच्छा, क्या आप लोगों को नंबरिंग करना आता है? डू यू गाइज नो, इफ आई आस्क यू कि मेंटल में आपको इन, हमें पता है ना अल्फाबेटिकल सीरीज ए से लेके जेड तक होता है, ए से लेके जेड तक होता है, जिसमें कि ए का नाम प्लेस 1 होता है, एम का 13 होता है, जेड का 26 होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डू यू गाइज यू नो हैव दिस थिंग, दिस कोडिंग, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज पैटर्न होता है, ये आपके टिप्स पर है? नहीं है तो हमें पहले वो सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे जल्दी से बताओ कि क्या, अगर मैं जैसे एकदम से आपसे पूछूं कि एन का नंबर प्लेस, वेरी गुड, तो फटाफट से बताओ अगर आपके टिप्स पर है तो एम की लेटर प्लेस क्या होती है, जल्दी बोलो। 13, वेरी गुड। ई की क्या होगी? ई ई ई ई ई ई फॉर एलिफेंट, ई की क्या होगी? 5, ग्रेट। एन की क्या होगी? 14। टी की क्या होगी? टी, टी की 20 होगी, है ना। ए की तो 1 होती है। एल की क्या होगी? एल 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 12। यू गाइज आर गुड।
तो आप लोगों को पता है ये अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बेस है आपकी कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि इसके बाद जब हम नंबर कोडिंग करेंगे ना तो वहां पे आपको इसकी बेहद इंपॉर्टेंस पता चलेगी। खैर, अब मेंटर को हमने कोड किया है कि किसने कोड किया मेंटर को, FNUOMB, राइट। अब ज्यादा आप कुछ मत करिए, डू नथिंग, लेकिन अगर आपको नंबरिंग करना आता है तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमने पहले ऑर्डर किया आपने इजी से कर लिया, हमने सब्स्टिट्यूशन किया आप बहुत आराम से कर पाए, लेकिन जैसे जिस भी कैटेगरी में अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, तो दूसरा कोई काम नहीं करना है कोडिंग में। सिंपल से आप क्या करो, उनकी नंबर प्लेसेस लिखो, और क्योंकि नंबर प्लेसेस सिर्फ यहाँ लिखने से तो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, आपको नंबर प्लेसेस यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज कंपैरिजन इज ऑन द अदर साइड, राइट। तो जस्ट राइट डाउन द नंबर प्लेसेस एंड देन यू ट्राई टू कंपेयर कि कौन सा लेटर फॉरवर्ड जा रहा है, कौन सा लेटर पीछे जा रहा है, कौन से में जिगजैग कोडिंग हुई है, क्या हुआ है, लेट्स सी दैट। सो एफ की नंबर प्लेस होती है 6, एन की होती है 14, यू की होती है 21, ओ की होती है 15, एम की होती है 13 एंड बी की होती है 2, राइट। नाउ इफ यू पे अटेंशन, मैं एम जो कि नंबर प्लेस 13 पे है उसको मैं एफ जिसकी नंबर प्लेस 6 है इसके साथ कंपेयर करूं, तो आई वुड सजेस्ट कि शायद कितना पीछे गया है, -7 हुआ है, आई कैन से, राइट। फिर मैं अगर ई की नंबर प्लेस जिसकी 5 है मैं उसको 14 से कनेक्ट करूं तो इट विल बी लाइक समथिंग कि कितना हम आगे गए, आई गेस 9, 9 + 5 = 14 है ना, +9। तो पहले में -7, दूसरे में +9, ऐसा कुछ हो रहा है। फिर हम आप n से किसको कनेक्ट करते हो, u को कनेक्ट करते हो, 14 से आप 21 पे जा रहे हो, फिर से -7 सॉरी +7 हो रहा है, देन आप 20 से जा रहे हो कहाँ पे, 15 पे जा रहे हो, -5 हुआ। तो एक पैटर्न जो है ओरिजिनेट कुछ इस तरह से हो रहा है कि प्लस माइनस। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और तरीके से देखो, ये 13 अगर मैं रिलेट करूँ 14 के साथ, राइट, इस 5 को मैं रिलेट करूँ 6 के साथ, यानी कि अगर मैं इसके कोडिंग पैटर्न को मैं यहाँ डाउन लिखूं FNUOMB, अगर मैं यहाँ लिखूं और आप इसको ठीक से आप देखें 6, 14, 21, 15, 13 and 2, now can be, yes we can compare zigzag ईशानी। now see, m को अगर मैं n के साथ कंपेयर करूंगी तो मुझे बहुत इजी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि m की नंबर प्लेस 13 और n की कितनी 14, एंड आई कैन से कि zigzag पैटर्न में क्या कर दिया, +1 कर दिया। e को मैं कंपेयर करूं f के साथ, तो e is for 5 and f is for 6, यहाँ पर भी क्या हो गया, +1 हो गया, तो एक पेयर तो ये हो गया। देन n और t के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए, t से क्या आ गया, u आ गया, 20 से 21 यानी कि +1 हुआ, 14 से 15 अगेन +1 हुआ। अब मैं अगर a और l की बात करूं तो a से भी +1 दिख रहा है, l से m +1 दिख रहा है, तो दिस इज नथिंग, आपने क्या कर दिया, लेटर्स को, वर्ड को दो एक एक के पेयर में डिवाइड कर दिया, और एक एक के पेयर में डिवाइड करने के बाद आपने क्रिस क्रॉस मैनर में उसका पैटर्न रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर बेस भी लगा है। ऑर्डर इसलिए लगा है क्योंकि जब वाइल यू वर डूइंग द कोडिंग तो आप इनको ऐसे पुट कर रहे हो, कैसे, जिगजैग मैनर में, राइट। सो डू वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, डू वी अंडरस्टैंड दी फर्स्ट वन गाइस, फटाफट से बताओ फिर इसका, ओके ग्रेट। अब इसका हमें आंसर निकालना है कोडिंग का, है ना, कोडिंग का हमें आंसर निकालना, तो एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, तीसरा पेयर ये बनेगा, ठीक है। अब इसको जिगजैग पैटर्न में आपको कोड करना है, तो ओ से +1 करना है, MNO के बाद क्या आता है P, C के बाद क्या आता है D, D से यहाँ से आपको जिगजैग मैनर में जाना है, तो D के बाद क्या आया, E आया, राइट, और ये क्या है, I है ना, I के बाद क्या आता है, J आता है, N से क्या हो जाएगा, MNO, और G से क्या हो जाएगा, GH, right, so it will be PDJEHO, so what the pattern is, PDJEHO, I guess मुझे अच्छे से याद है, ईशानी का आंसर करेक्ट था, बाकी मुझे आप लोगों के आंसर याद नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, बट आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने आंसर करेक्ट किया था, ठीक है। तो zigzag, अब सिंपल सा फंडामेंटल आप ये रखो कि कोई भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आप फंसते हो तो एक ही काम आपको करना है, दैट इज राइट डाउन द नंबर प्लेसेस हियर, राइट डाउन द नंबर प्लेसेस हियर एंड जस्ट कंपेयर, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि क्लैट में आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा जहाँ पे आप फंस सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉक, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, वी हैव बेलिफ एज कोडेड एज व्हाट, ZDLFH, इसमें भी यही करो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सिंपल फंडा अपना रखो आप, दैट यू ट्राई टू पुट दी लेटर प्लेसेस, ठीक है। अगर आपको लेटर प्लेसेस टिप्स पे है तब आपको इजी पड़ेगा, अगर आप चल रहे हो ऐसे कि ABCDEF ये चल रहे हो तो फिर तो ये भी पैटर्न आपको टफ पड़ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। B के नंबर प्लेस इज 2, Z की कितनी है 26। अब देखो समझो इस चीज को, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर थिंग, आप एक तो जाते हो A से Z की तरफ, यानी कि यू आर गोइंग Z लिखा है मैंने, ठीक है। एक तो हम जाते हैं A से Z की तरफ, यानी कि जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स वी गो फॉरवर्ड। एक हम जाते हैं
A से Z की तरफ अगेन, बट दिस मैनर वी आर गोइंग इन रिवर्स. रिवर्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. ये दोनों बातें अलग हैं. तो एक आप B से जब Z पे जा रहे हो, अगर आप प्लस सीरीज में जाते हो तो यू आर गोइंग लाइक हाउ मच, यू आर गोइंग प्लस 24. अगर आप प्लस सीरीज में जाओगे तो यू विल सी देयर इज अ चेंज ऑफ हाउ मच, देयर इज अ चेंज ऑफ प्लस 24. बट इफ यू गो इन द बैकवर्ड मैनर, इफ यू गो रिवर्स मैनर, देन व्हाट यू फाइंड देन B से पहले क्या आया, A आया, और A से पहले क्या आया, Z आया. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, -2. तो अगर आप रिवर्स मैनर में जा रहे हो, जो भी क्लोजेस्ट होता है, अगर आपको प्लस करने में 24 लग रहा है और माइनस करने में 2 लग रहा है, तो आप माइनस वाले को प्रायोरिटी देते हो. दिस इज अगेन अ थिंग कैन बी व्हाट कैन बी रिमेंबर्ड, राइट. सो -2. ठीक है. अब E पे आया, E है 5 और D क्या है, D है 4. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 5 से 4 हुआ, यानी कि -1 बोल सकते हैं क्या. फिर आपने देखा L है और यहाँ पर भी L है. L की नंबर पेज कितनी, 12, और L की फिर से नंबर पेज कितनी, 12. यानी कि मूवमेंट कुछ हुआ ही नहीं है. आप वहीं के वहीं पर हो, वहीं के वहीं पे, यानी कि मूवमेंट कितना हो, 0 मूवमेंट. तो कुछ अब शायद आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पहले हम क्या किया, -2, फिर हमने क्या किया, -1, फिर हमने क्या किया, 0. अगर ऐसा पैटर्न है तो आप एक लेटर और आपको आगे जाना पड़ेगा टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न कंप्लीटली. सो फ्रॉम ई वी सी व्हाट, वी सी अ एफ. सो ई की अगर नंबर प्लेस 5 है तो एफ की नंबर प्लेस 6 है. दैट टेल्स यू व्हाट, +1. एंड देन you go with F. F से आप देखते हो H. F की नंबर प्लेस कितनी, 6, और H की कितनी, 8. How much? Addition, +2. So can you see the pattern here? पैटर्न क्या चला, पैटर्न चला -2, -1, फिर 0 पे आ गए, फिर +1, फिर +2. तो ये चल रहा था अपना पैटर्न. डू वी अंडरस्टैंड. ठीक है. ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ऐसा नहीं कि यही हमें रखना या यही हमारे एग्जाम में, नो, नथिंग लाइक दैट. बट द रियलिटी इज कि पैटर्न क्या है. अब देखो किसी ने क्या किया, किसी ने -2, -1, -0 इस पे चल पड़ा. आप ऐसा कर सकते हो कि कोई 8 लेटर वर्ड हो, आपने क्या किया, -8 किया, -7 किया, -6 किया, -5 किया, -4 किया, आप ऐसे चल पड़े. आप +1 किया, +2 किया, +3, +4 किया, आप ऐसे चल पड़े. आपने एक में +1 किया, दूसरे में +3 किया, तीसरे में +5 किया, नेक्स्ट में आपने +7 किया. क्या कर रहे हो आप, ऑड नंबर के एडिशन कर रहे हो. सिमिलरली ऑड नंबर के माइनसेस किए जा सकते हैं. सिमिलरली आप ऐसे चल सकते हैं, -2, -3, -5, -7. ये कौन से नंबर है ये, व्हाट नंबर्स आर दीज, these are prime numbers, right? तो आप प्राइम नंबर का पैटर्न लगा सकते हो. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दिमाग की समझ है कि आप किसी एक पैटर्न को कितना इजी और कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो. दैट इज इट. इससे ज्यादा इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है. सिंपल सी बात है कि तुमने किसी को मैसेज किया, आप चाहते हो कि मैसेज बस इतने ही लोग पढ़े, तो आप उतने ही लेवल का कोड करोगे. आप चाहते हो कि इससे छोटे बच्चे भी पढ़ ले, तो आप उस लेवल पे कोड करोगे. आप चाहते हो कोई ना पढ़े, सिर्फ वही एक इंसान पढ़े, तो आप उसको उसी लेवल में कोड करोगे. It is just the creativity of your brain. That is it. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन. अब तीसरे को देखते हैं जरा. What we have in third, careful. Q B B F K B V E. Sorry. Q B B F K V E. Right. Now again, let's just put the numbers first. It is always easy to check through the numbers. तो C का नंबर पे 3, A का 1, R का कितना होता है, 18 होता है, E का कितना 5 होता है, F का कितना 6 होता है. आयुष्मान, आई एम श्योर कि आपका आंसर करेक्ट है. वी विल सी दैट. आई एम श्योर कि आप सही बता रहे हो आंसर, बट अभी देखते हैं. F का 6 और 21 होता है U का, और L का नंबर पेज क्या हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया. ठीक है. इधर देखते जरा. Q का नंबर पेज कितना, 17, B का कितना 2, B का फिर से कितना 2, F का 6, एंड देन वी हैव अ K that is 11. We have a V here that is 22 and E that is 5. राइट. अब जरा कंपैरिजन करो. किसको कंपेयर करोगे आप. मुझे यहाँ पे 17 दिख रहा है. 17 कैन बी कंपेयर टू 12 ऑल्सो. 17 कैन बी कंपेयर टू 3 ऑल्सो. 17 कैन बी कंपेयर टू दिस 18 ऑल्सो, जो हमें ज्यादा एविडेंट लग रहा है. ठीक है. अच्छा, तो क्या R को हमने क्यों लिखा है क्या. अगर R को हम क्यों लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 की पेयरिंग की हम बात करना चाह रहे हैं. तो क्या C को B लिखा है क्या, 3 से 2 किया है क्या. 18 से 17 यानी कि -1 करने की बात हो रही है. 3 से 2 यानी कि फिर से क्या, -1 करने की बात हो रही है. तो फिर इस A को क्या किया होगा, B किया होगा. तो बीच वाले में क्या कर रहे हैं हम, +1 कर रहे हैं. तो द कोड इज लाइक -1 +1 -1. ठीक है. अब लेकिन केयरफुल में जस्ट 3 and 3 6 लेटर्स नहीं है. केयरफुल में कितने लेटर्स हैं, 3 and 3, और एक बीच में ये E भी है, यानी कि 7 letters word are 7 lettered word is that this careful is right. अगर ऐसा है तो ये 6 can be related to this 5, this 12 can be related to this 11,
and this 21 can be related to this 22. तो वही जो पैटर्न आपने ये फ्रंट में रिकॉग्नाइज किया है वही हम पैटर्न लास्ट में, लास्ट के 3 लेटर में भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, which is f can be coded as e, that is 6 to 5 यानी कि -1, 21 to 20, sorry guys, so 21 to what we see is 22 and L जिसकी नंबर प्लेस 12 है उससे हम कहाँ पे आगे, K पे आगे जिसकी नंबर प्लेस क्या है 11 है, तो 12 to 11 यानी कि -1, 6 to 5 zigzag पैटर्न में अगेन -1, 21 से 22 अगेन +1। अब ये सब तो आपने ठीक से रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, हमने 3-3 की पेयरिंग कर ली, वही 3-3 की पेयरिंग लास्ट में भी हुई है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस ई, इस ई को क्या किया, इस ई को शायद कोड कर रखा है इन्होंने f, तो E is at 5 and F is at 6 यानी कि यहाँ पर भी क्या +1। अब जरा अगर आप ठीक से देखें, ठीक से समझने की कोशिश करें, if you pay attention then you will find that कि जो पैटर्न अगर हम इन टोटल देखें तो इन टोटल हमें एक पैटर्न दिख रहा है -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, ये पैटर्न चल रहा है अपना -1 and then +1 -1 and then +1, this is the pattern going on all around, right? लेकिन उसके बीच में एक और कॉन्सेप्ट लग गया, किसका, ऑर्डर का। ऑर्डर से मेरा क्यों मतलब है यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या कर रहा है, सी का कोड सीधे सी के नीचे नहीं लिखा ना, सी का कोड कहाँ लिखा है, zigzag मैनर में लिखा है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर प्लस लिटिल बिट ऑफ नंबर कोडिंग, दैट इज इट, करेक्ट। आयुष्मान आपने जो आंसर किया, आई एम श्योर आपने भी कोई लॉजिक लगाया होगा, बट लॉजिक देखो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगी आप लोगों को कि जो मैं बोल रही हूँ वही करेक्ट है, नो नॉट एट ऑल, मतलब करेक्ट तो है डेफिनेटली, मैं अपनी से सही बता रही हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसा नहीं है कि जो पैटर्न मैं बता रही हूँ बस वही पैटर्न होगा, इसी सेम वर्ड को, केयरफुल को आप अपने दिमाग से बहुत सारे तरीके से कोड कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जब आप सी में +1 कर सकते हो तो सी में -1 भी तो कर सकते हो, सी में +2 कर सकते हो तो -3 भी तो कर सकते हो, राइट। तो सी को जब आप सी का कोड जस्ट सी के नीचे लिख सकते हो तो सी का कोड zigzag मैनर में तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट दैट हाउ फार यू वांट टू गो। अब जरा मुझे ये बताओ हाँ या ना में कि क्या ये हमें समझ में आया केयरफुल वाला फंडा। ओके आशीष, ग्रेट, प्रणय, आरुषि, आशीष, आयुष्मान, चलिए तो आगे बढ़े। तो मिक्स्ड कोडिंग आपको बताने का मेरा सिंपल सा मतलब जो था वो ये था कि इन जनरल जो आपको दिखेगा ना, इन जनरल जो आपको दिखेगा, हाँ आयुष्मान बताओ, बोलो। अच्छा सॉरी, आप लोग, मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी, प्रोसेस, राइट। I was just looking at this and that is why I could not to your answer Ishani and I feel really sorry guys. Yes definitely process का आपने आंसर सही निकाला है, करेक्ट, यही ऑर्डर फॉलो किया है ना जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, 100% सही है। My mistake, I did not pay attention कि आप प्रोसेस का आंसर बता रहे हैं। I got it. या ईशानी आपका भी ठीक है, आयुष्मान आपका भी ठीक है। ईशानी बट द कोड इज नॉट कंप्लीट हियर, है ना, आप शायद लिख रहे होंगे, आई एम श्योर, बट कंप्लीट नहीं है अभी, कंप्लीट आप कर लेंगे मुझे पता है। चलो वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, फिर अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। हाँ वेरी गुड ईशानी, करेक्ट, अभी ठीक है, पूरा कंप्लीट। That's fine ईशानी, आपने स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स अगर सही बता दी, that means you have understood the concept. So the basic reality about reasoning is concept or about any subject is concept. बाकी आंसर तो आप निकाल ही लेते, it's not a big deal, है ना। चलो अच्छा ये बताओ आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप पे चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर कोडिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग दैट आई लाइक वेरी मच, क्योंकि नंबर कोडिंग अब तक का वो एरिया है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक कौन कौन से पढ़ लिए, हमने पढ़े
हमने पढ़ा ऑर्डर, जिसमें मुझे नहीं लगता कभी आपको जिंदगी में दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पहले भी नहीं थी, आपने ऑलरेडी बहुत सही तरीके से आंसर बताया मुझे। दूसरा हमने गेस किया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीसरा हमने देखा मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग इज मोर और लेस द पार्ट ऑफ नंबर कोडिंग ओनली, ठीक है, कुछ नया नहीं है, बस इसी का पार्ट है। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं वो नंबर कोडिंग। व्हाई नंबर कोडिंग सो फैसिनेटिंग, इट इज एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग। क्यों? क्योंकि आपने अब क्या, किसका आप यूज कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करने के लिए? कोड करने के लिए। अब नंबर तो है भाई अनगिनत। वेरी गुड प्रणय, बहुत बढ़िया, आपने सबने आंसर दिया है। देखो कितनी जल्दी आप लोग आंसर करने लगे एग्जैक्टली। let's see this thing. So we have J as 10, A as 1 and M as 13. तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। क्या 10 प्लस 1 प्लस 13 को ऐड किया तो 24 आ गया एग्जैक्टली। देन हम बात करेंगे गैट की, तो G के नंबर पे 7, A के नंबर पे 1 एंड T के नंबर पे 20। तो 20 प्लस 7 इज 27 प्लस 1 इज 28। तो 28 आंसर होगा भाई, 26 नहीं होगा। राइट, बिल्कुल सही है। अब आप देखोगे, करेक्ट, चलो वेरी गुड। अब जरा देखते हैं इसमें वेरिएशन। यही इसका ब्यूटी है इस नंबर कोडिंग का, कि वेरिएशन कितनी ज्यादा दिखेंगे आपको इस 3 लेटर वर्ड में, ठीक है। चलो, तो जैम को हमने लिखा है एज 6। बहुत सिंपल है, बेसिक है, जल्दी जल्दी इसको करेंगे और फिर इसके आगे जो और बेहतर आंसर क्वेश्चन है हमारे पास उसको डिस्कस करेंगे। 7, ओके। फ्रेंड 7 आपने, चलो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करेंगे कि 7 आपने किस माइंडसेट से किया है इसको। 7 देखो ऐसा नहीं है कि तुमको तभी बोलना है या तभी आंसर करना है आप लोगों को जब आपको लगे कि बिल्कुल हम सही आंसर कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज आंसर व्हाटएवर यू थिंक लाइक। सब लोग आंसर कर रहे हैं 777। प्रणय या जो भी अर्चना है और महेंद्र हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द लॉजिक यू आर अप्लाइंग? आई एम श्योर कि आपने बिल्कुल सही लॉजिक अप्लाई किया होगा। ये 7 नहीं है, ये डज इट लुक लाइक 7? नो, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। आई एम आस्किंग यू, आप मुझे आंसर बता रहे हो। डिवाइडेड, ओके, यू आर डिवाइडिंग बाय 4। ग्रेट, नो इश्यूज विद दैट, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। अब देखो, चलो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पैटर्न लेकिन मैंने नहीं लगाया था, मैं आपको बताऊं एक बात। पर आप लोगों ने एक और नया पैटर्न बताया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं आयुष्मान, अगर डिवाइड भी किया है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली आयुष्मान, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू। दोनों बातें इक्वली सही है। प्रणय बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग इतना इंटरेस्ट के साथ इतना इंटरेक्ट कर रहे हो ना, दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। चलो, अब थोड़ा सा कमेंट को बंद कर देते, थोड़ा सा समझ लेते, नाउ सी हाउ इट गोस। एक तो अब देखो 3 पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते। पहला तो पैटर्न वही डिस्कस करते जो आप लोगों ने सजेस्ट किया। क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने सिंपली देखा कि इसको ऐड किया, जे की नंबर 10, ए की 1 और एम की 13। तो आफ्टर एडिंग ऑल दीज नंबर्स वी गेट 24। इफ 24 इज डिवाइडेड बाय 4, तो 4 6 24, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पे किया, इसको ऐड किया 7 प्लस 1 प्लस 20, दिस गिव्स यू हाउ मच? 28। एंड इफ 28 is getting divided by 4, it gives you the answer as 7। और 7 absolutely correct है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड टिल नाउ? आप इसमें दूसरा लॉजिक देखो। अगर जैम में नंबर ऑफ लेटर्स, अगर मैं क्वांटिटी पे जाऊं, नाउ पे अटेंशन, देयर इज, आप किसी भी वर्ड को नंबर से कोड तभी कर पा रहे हैं ना जब व्हेन यू हैव द नंबर्स। नंबर कहाँ से आएंगे? नंबर आने के दो ही तरीके हैं। दो तरीके क्या है? एक तो हम पर्टिकुलर वर्ड की क्वालिटी पे, सॉरी क्वांटिटी पे काम करें। क्वांटिटी मतलब कि जैसे जैम में नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 3 है, तो नंबर ऑफ लेटर्स आपने काउंट किए कितने? 3। 3 का क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया, 6। तो उसके हिसाब से तो फिर गैट में भी नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 3, और 3 का डबल करोगे तो वहां पर भी 6 आएगा।
तो यहाँ तो क्या है, सेम आ जाएगा अपना आंसर। तो एक तो लॉजिक ये भी बना। दूसरा लॉजिक क्या है कि आपने जैम को ऐड करा, ऐड किया तो आपके पास कितना आया, 24 आया, बट आपने 24 ना लिख के, मतलब नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पैटर्न कि हम इसको, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फॉर दिस वन। हम तीसरे पैटर्न की जो बात करें, हम ये बोल रहे हैं कि जैम को अगर मैंने लिखा है 6 तो मुझे बताना है कोड किसका, गेट का। अब यहाँ पे जो तीसरा पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि यू आर गोइंग टू ऐड द लेटर प्लेसेस ऑफ द नंबर। आप तब तक उस लेटर प्लेसेस को जो लेटर जो वर्ड है उसकी उसके अंदर जो लेटर्स हैं उसकी अल्फाबेटिकल नंबर प्लेसेस को आप तब तक ऐड कर रही हैं या तब तक ऐड करते हो जब तक वी डू नॉट get a single digit number. Now let's see another pattern, that is j की number place is 10, 1 and 13. You add this up, you get 24. 24 is still a 2-digit number or not? तो 24 को हमने क्या किया, सम अप कर दिया, यानी कि 2 + 4 कर दिया। 2 + 4 कितना बना, 6 बना, and that is how we are getting 6. Similarly इसमें हमें 7 + 1 + 20 किया, हमारे पास जो कोड बना वो 28 बना, but 28 is still a double digit number. Now you add these two. 8 + 2 will give you 10. 10 is again a double digit number. You further add it. 1 + 0. 1 + 0 करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसका एक आंसर 1 भी हो सकता है। एग्जैक्टली ईशानी, बिल्कुल सही बोला आपने। समझ में आई बात? मतलब कि एक वर्ड है, तो इसीलिए मैंने ये नहीं बोला कि भैया आप लोगों ने 7 निकाला तो कैसे निकाल दिया, मैंने तो इसको ऐसे प्रिंट नहीं, मैं नहीं बोल सकती ये। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को यूज किया, आपने एक पैटर्न फाइंड आउट किया। बिल्कुल एग्जामिनर कोई भी पैटर्न के इसमें आपको के रेफरेंस में आपको क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन अब आप ये क्वेश्चन जरूर मुझसे कर सकते हो कि फिर हम कैसे अपना आंसर कैसे हम देखेंगे। तो आंसर आप ऐसे देखेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये सिर्फ जैम लिख के नहीं छोड़ देंगे, वो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपके अनगिनत पैटर्न बन सकते हैं, where you can find lot many patterns being applied to the single word। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक और एग्जांपल देते हैं। वो आपको 2 एग्जांपल देंगे और दोनों एग्जांपल में आप क्या करोगे, आप चेक कर लोगे कौन सा पैटर्न लग रहा है, फिर उसके हिसाब से आप आंसर कर देते हो। या फिर आपके ऑप्शंस में क्या होगा, ऑप्शन में आपके 1 होगा ही नहीं, ऑप्शन में आपके 3 होगा ही नहीं, ऑप्शन में आपके सिर्फ 7 होगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, वेग होंगे, फालतू होंगे। तो फिर आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। डू वी अंडरस्टैंड? प्रणय बोल रहे मैम बट इफ ऑप्शन इज गिवन। नहीं प्रणय, ऐसा थोड़ा ना होता है एग्जाम में। अगर वो ऑप्शन दोनों भी दे देगा तो हो सकता है वो ये ऑप्शन भी दे दे कि ईदर 1 और 7, ये भी तो हो सकता है। जो हमारे एग्जाम्स बनते हैं, एग्जाम्स काफी क्रॉस वेरीफाई होके होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे देते हैं। डेफिनेटली दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, पूरे स्क्रूटिनाइज किए जाते हैं वो सारी चीज, राइट? तो डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर ऐसा हुआ भी ना कि एक ही वर्ड पे नंबर ऑफ पैटर्न लग रहे हैं और सारे के सारे पैटर्न सही है, तो आपको एक और एग्जांपल दिया जाता है सो दैट यू कैन वेरीफाई द पैटर्न। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप वो पैटर्न लगा दो, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो कई बार आपके ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो इसमें जान में, एक दो पैटर्न और देख लें इसमें। अब जैसे ये फर्स्ट लेटर है, ये लास्ट लेटर है, इसकी नंबर कितनी 10, इसकी कितनी 30। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाला ऐड या माइनस कर सकते हो। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर 13 × 10 130, 130 में 1 ऐड कर दिया तो 131 पैटर्न बन जाएगा, 1 माइनस कर दिया तो 129 पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसमें रहेंगी। ठीक है, मतलब सिंपल सारा वो सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है सब लग जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, एक और बात, मैंने अभी बात वैसे बोला है इसके बारे में कि आप 2 चीजों पे काम करते हो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर कोडिंग। जब भी हम नंबर कोडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो नंबर आना भी तो चाहिए। नंबर का सोर्स क्या है? नंबर का सोर्स 2 ही चीजें है। एक, या तो हम नंबर लेकर आएंगे कहाँ से, उसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन से, अल्फाबेटिकल पोजीशन से। एक तो यहाँ से नंबर आएगा, जैसे कि हमें जे से क्या मिला 10 मिला, ए से क्या मिला 1 मिला, एन से क्या मिला 13 मिला। दूसरा कहाँ से आएगा, उसकी क्वांटिटी से। आप इसको मजाक में मत लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी से भी आपका पैटर्न बनता है। जैसे कि अगर जैम में नंबर ऑफ लेटर्स कितने 3 तो 3 का आपने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है, इस तरह से भी काम चलता है अपना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यू विल फाइंड सम क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये तो आपको पता है, आई एम श्योर यू गाइस आर मच अवेयर ऑफ दिस आइडिया। टेल मी। ग्रेट, हाँ तो फिर इस पे टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, ग्रेट। अगर किसी को नहीं भी पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी आपको समझ में तो आ ही जाएगा, इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ यू फाइंड सम क्वेश्चंस रिटन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन।
ठीक है, अब इन क्वेश्चन को जरा आप एक एक करके ना ट्राई करो. एंड हाउ मच टाइम डू वी हैव एग्जैक्टली कितने 4 क्वेश्चन है ना अपने पास, 1 2 3 4 4 मिनट. एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगा लो, है ना. और ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन में अटके रह जाना. प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. कोई एक इजी हो सकता है, कोई एक टफ हो सकता है. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सारे पे फोकस कर रहे हैं. स्टार्ट करो. Ashish, is it possible that some numbers are not valid to count? That some number is not valid to count. हाँ, आप कुछ बीच में से छोड़ के काउंट करना चाहते हो कि पहले फर्स्ट काउंट कर लिया, तीसरा कर लिया, पांचवा कर लिया, या 2 4 6 इवन कर लिया या ऑड कर लिया, ऐसा हो सकता है या. बट अब इतना ही समझ पाई हूँ आपके क्वेश्चन से. तो थर्ड का MTN MTK बता रहे हैं आप लोग. बहुत बढ़िया. लास्ट 1 मिनट वी आर लेफ्ट विद गाइस, फिर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है अपनी क्लास का. Last 20 seconds.
ये जो आप लोग मुझे आंसर बता रहे हो 114 पहले वाले क्वेश्चन का, ये मुझे पता है आपने क्या दिमाग लगाया। दैट इज इंटरेस्टिंग। कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो गए तुम लोग। हाँ, लास्ट के 2 लेटर की नंबर पे से चिपका दी वहां पे। ईशानी बोल रही है MRU। दैट इज ग्रेट, वेरी गुड ईशानी, वेल डन। चलो भाई, टाइम खत्म हो गया। ओके माइन, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। टाइम खत्म हो गया मतलब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का, मेरा भी बचा है। चलो, शेल वी डिस्कस नाउ। स्टार्ट करते पहले वाले से, फर्स्ट से स्टार्ट करते। देखो, वी डिड टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द लेटर्स, है ना, हमने क्वांटिटी के बारे में बात किया था। तो ये जो पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, अच्छा पहले क्वेश्चन को तो चलो छोड़ दो, नहीं क्लिक कर सकता ये बिना बताए, मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन है, परफेक्ट के आगे 343 लिखा है, डिड यू गाइस नॉट नोटिस कि 343 इज नॉट अ नॉर्मल नंबर। 343 क्या है, इज इट अ नॉर्मल नंबर या कुछ इसमें यूनिक है, कुछ इसके बारे में स्पेशल है, क्या है इसके बारे में स्पेशल, एनीथिंग, कुछ है आइडिया। 343 प्राइम है, वेरी गुड, प्राइम है, और कुछ इसके बारे में बता सकते हैं हम। एक प्राइम है, दैट इज ग्रेट, एक और चीज इसके बारे में स्पेशल है, इट इज अ स्क्वायर नंबर। सोनिया बोल रही इट इज अ स्क्वायर नंबर। सोनिया, इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर बट इट इज अ क्यूब नंबर। मे बी आप कहना चाह रहे थे क्यूब और आप जल्दी जल्दी में शायद स्क्वायर बोल दिया, बट it's a cube, and it's a cube of what? It's a cube of 7. When you multiply 7 3 times, 7 into 7 into 7, right, what you get 343. Do we know that? तो यहाँ पे इतना बड़ा हिंट आपके सामने लिखा हुआ है 343। 343 देखते ही आपको ये होना चाहिए कि कहीं ये दिस इज स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर। अब आपको दिमाग में आएगी ये चीज कि अच्छा ये तो क्यूब होता है 7 का। जैसे ही दिमाग में ये बात आई कि ये क्यूब होता है 7 का, वैसे ही आपने दूसरा काम क्या किया, वेरीफाई किया कि क्या यहाँ पे 7 लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव? 7। तो 7 का क्यूब क्या होगा? 343। तो हाउ मेनी लेटर्स वी हैव इन एनर्जी? 3 and 3 6। 6 का क्यूब क्या होता है? 256 होता है आयुष्मान। 6 into 6 into 6 is 216। ठीक है, तो एनर्जी का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 216, नॉट 256, राइट? सो द आंसर विल बी 216। ग्रेट, सो वी ऑल अंडरस्टैंड दिस वन। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। 343 एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ था। यू शुड हैव टेकन दैट हिंट एंड यू शुड हैव गॉन फर्दर। So I guess the third question is clear to everyone. बोलो ना हाँ या ना, कुछ तो बताओ तो वो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now the second question we have is great is coded as 120। अच्छा यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया है which is very interesting also कि T का कोड है 20 और A का कोड है 1। यही किया ना आप लोगों ने, इसीलिए तुम मुझे बता रहे थे आंसर कि A का कोड है 1 और N का कोड है 14। यही किया था ना? सच बताओ जरा, ये पैटर्न लगाया था? हाँ, बट इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि तो 114 आपके ऑप्शंस में भी नहीं होगा, ठीक है? तो दिस इज नॉट अ पैटर्न। ओके, पैटर्न क्या है? पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पैटर्न ये है कि और ये आपके लिए एक एग्जांपल हो सकता है आगे आगे कभी भी कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए। Now again, this one and this is both are based on the quantity of the letter. Now the quantity here is how much? 1 2 3 4 5, 5 letters are there। 5 का फैक्टोरियल करना जानते हैं क्या हम? नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर किया जा सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब किया जा सकता है, फैक्टोरियल किया जा सकता है। उस नंबर ऑफ लेटर्स को उसका स्क्वायर करके और फिर उसके क्यूब के साथ कुछ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस तरह की चीजें की जा सकती है। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व 5 फैक्टोरियल? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हम सबने बचपन से पढ़ा होता है फैक्टोरियल, है ना? तो ये कितना आएगा? 120 आएगा, क्योंकि रावण में भी 5 ही लेटर्स है, तो इसका भी हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो 5 फैक्टोरियल बनेगा। अगेन यू आर गोइंग टू गेट दी 120 एज द आंसर, जो कि ईशानी बोल रही है एग्जैक्टली 120 ही होगा इसका आंसर। बट आपके लिए इंटरेस्टिंग और नोटिसेबल बात ये है कि फैक्टोरियल हम सोच भी नहीं सकते कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह से अप्लाई होगा, बट नाउ यू कैन थिंक ऑफ इट।
कि फैक्टोरियल जैसा कॉन्सेप्ट भी एक जगह पे लग सकता है, कब, जब हम क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं। तो बस आप जब सारे पैटर्न अप्लाई करते हो तो क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस दीजिए कि क्वांटिटी पे काम तो नहीं किया गया है, ठीक है क्या, क्लियर है? नेवर थॉट ऑफ दिस, एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, नेवर थॉट ऑफ दिस, कई चीजें हम कभी सोचते नहीं, हो जाती लाइफ में, नॉट अ बिग डील, राइट? चलो, बट नाउ दैट यू नो, अब आपके आगे के लिए अच्छा होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। GKB इज कोडेड एज GVF, ठीक है। हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि जब भी, कभी भी, चाहे वो लेटर कोडिंग हो, चाहे अल्फाबेट कोडिंग हो, चाहे नंबर कोडिंग हो, whensoever you are stuck in coding decoding, just do one thing and that will get you through, that is, अगर हमें समझ में नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं प्रणय, लेट्स सी कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, आई एम नॉट श्योर कि ये बनेगा आंसर। अच्छा, तो हम क्या करें, सिंपल, जरा इसकी नंबर प्लेसेस लिखो, जरा कंपैरिजन नंबर प्लेसेस लेके करते हैं। जी की नंबर प्लेस कितनी, 7, यहाँ पर भी आपको जी की जगह पे क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है 7, तो 7 से 7, हाउ कैन यू गेट अ 7 फ्रॉम अ 7? दो तरीके हैं, या तो आप इसमें 0 ऐड करो, एडवांसमेंट कुछ करो ही मत, 0 ऐड करो तो आपको 7 से 7 मिल जाएगा। दूसरा क्या, इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 7, सॉरी 1, तो 7 से 7 दो तरीके से आ सकते हैं, either you add 0 to it or you multiply by 1, clear? सेकंड केस अपने पास क्या है, k की नंबर प्लेस कितनी, 11, व्हाट आर v की नंबर प्लेस कितनी, 22, तो 11 से हमने कितना जंप किया, 22 का जंप किया। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी गेट 11 से 22, so either you add 11 to 11, that is how you get 22, or what we do is if you multiply, you just do the twice of that, you get 22, करेक्ट है? यहाँ तक बात, कुछ दिक्कत है क्या? तीसरे पे हम आते हैं, वी हैव अ बी, एग्जैक्टली सुमित, राइट, वेरी गुड। तो बी है यहाँ पर, बी की नंबर प्लेस कितनी है, 2 है। एफ है यहाँ पर, एफ की नंबर प्लेस कितनी है, 6 है। अब 2 से 6 पे आपको जाना है, 2 से 6 आप अगेन दो तरीके से जा सकते हैं, या तो 2 में +4 करें और आ जाएं आप 6 पर, या फिर आप 2 में क्या करें, इंटू 3 करें और आ जाएं आप 6 पर। अब दोनों चॉइसेस आपके सामने है, दोनों पैटर्न आपके सामने है, but you have to see which pattern to choose and which to reject. Why? Because यहाँ पे पहले वाले लेटर में आप 0 कर रहे हैं ऐड, फिर आप 11 ऐड करें, फिर आप 4 ऐड करें, so the pattern goes like +0, +11 and +4. On the other side the pattern goes like into 1, into 2, into 3. आपको कौन सा पैटर्न सिक्वेंशियल लग रहा है या लॉजिकल लग रहा है? ऑब्वियसली into 1, into 2, into 3, ये पैटर्न जैसा दिख रहा है आपको, लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है। यहाँ पे क्या पहले 0 ऐड किया, फिर 11 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पैटर्न। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग इट इन अ सीक्वेंस into 1, into 2, into 3। बताती हूँ ईशानी, बताती हूँ डेफिनेटली। MIG का क्या हो जाएगा? अच्छा आंसर बताओ फिर इसका क्या बनेगा? MRU, एग्जैक्टली अर्चना, इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि M में आप मल्टीप्लाई, नेट खत्म हो रहा है, ओके, तो MIG का हो जाएगा आपका MRU। ठीक है भाई, तुम जियो प्लान पे नहीं चल रही हो क्या ईशानी? जियो में तो 1.5 GB भी मिलता है। खैर चलो, आते हैं ईशानी की बात पूरी करते हैं। तो यहाँ पे MIU आ जाएगा गाइस, वो आप निकालोगे, नॉट अ बिग डील। अब आते हैं ऑफिसर्स एंड एकेडमी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या, मेरा सुबह से क्लास चल रहा है। अच्छा ईशानी भाई, अब मैं क्या करूँ, मैं ईशानी से बताओ। चलो ये मैं बता सकती हूँ क्वेश्चन फटाफट से, ये मैं कर सकती हूँ। अच्छा, now when you look at this word officers, अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट वी सी, फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी कि अभी तक हमने या तो कैसे क्वेश्चन देखे जहां पे लेटर की जगह हमें लेटर ही दिख रहे हैं, मतलब कोडिंग पार्ट में और अनकोडिंग पार्ट में दोनों जगह पे हमें लेटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका, नंबर ऑफ लेटर दोनों का, फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी दैट। अब एक और बात है, अगर कुछ ऐसा होता कि एक नंबर होता, 1 होता, फिर लेटर होता, फिर नंबर होता, फिर लेटर होता, फिर नंबर होता, फिर लेटर, तो आप बोलते कि भाई हमने क्या कर दिया, ऑल्टरनेट फैशन में कोडिंग कर दी, एक नंबर एक लेटर, एक नंबर एक लेटर। लेकिन यहाँ पे वो भी होता दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि एक नंबर आया, फिर 2 लेटर आए, फिर एक नंबर आया, फिर एक लेटर आया, फिर एक नंबर आया, फिर 2 लेटर आए, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, अब जब यहाँ सारी हमारी कोई बात चल नहीं रही, तो आपका दिमाग थोड़ा सा खनकना चाहिए यहाँ पे कि हम नंबर लिख कहाँ रहे हैं। Why? Because the letters are more in number. Double G है, फिर D है, फिर S है, फिर T है. Letters are more in number. Only the letters are at very few specific places. So what are these places? I see a number in place of O. I again see a number in place of I. I again see a number in place of E. So if I write them अलग से, O I और E की जगह पे आपको क्या दिख रहे हैं,
नंबर्स दिख रहे हैं बाकी सब जगह पे। हाँ, वेरी गुड आशीष। तो क्या किया, सारी कहानी यही पे है जो आशीष ने अभी भी बोला है कि ये क्या है, ये है वॉवल्स। यानी कि पूरा जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो वॉवल्स में और दूसरा किसमें, कॉन्सोनेंट्स, राइट। वॉवल को क्या किया, वॉवल को किया उनकी नंबर प्लेसेस से प्लेस, लेकिन ओ की नंबर प्लेस तो होती है 15। तो हमने माना कि ओ की नंबर प्लेस जो अल्फाबेटिकल सीरीज की नंबर प्लेस होती है 15 को शायद 1 और 5 को डिफरेंस कर लिया होगा, 1 और 5 को माइनस कर दिया होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा एक दूसरे से, तो 4 आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड। बट आई में तो 9 होता है, 9 की जगह पे 3 क्यों लिखा, या ई की नंबर प्लेस तो 5 होती, 5 की जगह पे 2 क्यों लिखा, एग्जैक्टली, राइट। तो क्या किया, जो हमारे वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, अगर आप वॉवल्स को निकाल के सेपरेट लिखे तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो ना कि ए हमारे फर्स्ट नंबर का वॉवल है, ई जो है फिफ्थ नंबर का, सॉरी सेकंड नंबर का वॉवल है, आई जो थर्ड नंबर का है, ओ जो है फोर्थ नंबर का, यू जो है वो फिफ्थ नंबर का है। तो सिमिलरली ओ कौन से नंबर का वॉवल है, फोर्थ नंबर का, तो 4 लिखा। आई कौन से नंबर का वॉवल है, थर्ड नंबर का, तो आई की जगह पे 3 लिखा। और ई कौन से नंबर का वॉवल है, सेकंड नंबर का, तो इसलिए क्या लिखा, 2 लिखा। बाकी सब जगह पे क्या एफ से जी आया, आपको पता है एफ से जी कैसे आया, +1 हुआ, फिर एफ से जी आया +1 हुआ, आर से क्या आया, एस आया, और एस से क्या आया, टी आया। तो कॉन्सोनेंट में कुछ नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट में दे आर डूइंग जस्ट +1, एंड जो नंबर्स आए वॉवल की प्लेस में, वॉवल की प्लेस में भी किस तरह से, वॉवल सीरीज के हिसाब से, नॉट लाइक, क्योंकि ई के 2 नंबर प्लेसेस होंगे, एक तो वॉवल वाला सेकंड नंबर का वॉवल है, और दूसरा होगा आपका 5th नंबर का लेटर है ये, ठीक है। तो लेटर और वॉवल में दोनों में डिफरेंस है। तो सिमिलरली अकेडमी का जो कोड बनेगा वो, लेट्स सी कि ईशानी ने आंसर सही किया या नहीं। तो अकेडमी में कोड जो बनेगा क्या होगा, ए की नंबर प्लेस 1, सी क्या है वॉवल, सॉरी कॉन्सोनेंट, सी का तो +1 हो जाएगा, +1 की नंबर प्लेस क्या बनेगा, डी। वेट, ओके आई विल वेट, बट नॉट फॉर लॉन्ग, 10 seconds। कोई बोलता है वेट करो, ईशानी बोल रही मैम नेट खत्म हो रहा है, कैसे हो पाएगा ऐसा, हाँ। सोनिया 1D 1E 2NZ, सोनिया आप क्या पूछ रही हो, क्वेश्चन मार्क से मैं क्या समझू। अच्छा चलो ठीक है, पहले इसको पहले क्या करें, इसका आंसर निकालते, देखते कि आयुष्मान और आशीष ने सही आंसर दिया है कि नहीं दिया। तो ए क्या है, वॉवल, ए की जगह पे कौन से नंबर का वॉवल है, फर्स्ट। अच्छा आंसर बता रहे हो आप सोनिया, वेरी गुड। मेरे ख्याल से सबने आपने सही आंसर निकाला, बट सबके आंसर थोड़ा डिफरेंस आ रहे हैं, कहीं पे ई आ रहा है, कहीं पे एफ आ रहा है, और अर्चना के आंसर में 2YO आया है। तो लेट्स सी कि क्या एग्जैक्टली आंसर है। ए क्या है, वॉवल, कौन से नंबर का वॉवल है, फर्स्ट नंबर का वॉवल है तो 1 आएगा। सी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट सी का क्या हो जाएगा, +1 से क्या आएगा, डी आएगा। ए इज अगेन अ वॉवल, 1 आएगा। डी से क्या हो जाएगा, +1, डी इज अ कॉन्सोनेंट, तो डी से +1 यानी कि ई हो जाएगा। E is a vowel which number, E is a vowel of second number, A E I O U, तो E के लिए 2 यूज होगा, M के बाद आता है N और Y के बाद आता है Z। I think this has to be the answer, 1D 1E 2NZ, 1E 1D 2NZ, right। सोनिया F नहीं आएगा, या you're welcome Ishani, and you've been a very good student, that's great। अच्छा क्लियर है ना, इसमें किसी को कोई टेंशन तो नहीं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलो यहीं पे इसका क्लास को एंड कर रहे हैं, राइट। सो टेक केयर गाइस, कीप वर्किंग, गुड बाय। Thank you so much, ma'am, for taking out time for this session. To everyone in the class, can you rate this session out of 10? So again, we are going with this 10, 10, 10. Everybody is going up, has picked up this 10. On this particular note, Thank take you care, everyone. everyone. Thank you so much. Ashish, Archana, Amit, Sonia, everyone. Thank you guys. Take care and keep learning, keep doing good. And You mock 2 has been, yeah. Thank you guys. Thank you so much. See you Mock, soon. See you yeah. soon. Mock 2 Over on, to you, Harsh. Yeah. ma'am, mock 2 on the new CLAT pattern, CLAT 2.0 has been updated on your LMS, and it would be live tomorrow at 3 p.m. On this note, take care, keep learning. Thank you, ma'am. Thank you so much.